15. I hope you and everybody around you are enjoying good health and are practicing the safety measures and keeping yourself and everybody safe and disease free around you. Try your best to do it. Okay, the topic which we are going to discuss today is large intestine. लार्ज इंटेस्टाइन में दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और अगर आप ये लेक्चर इट्स अ प्रीटी कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर, अगर आप ये गौर से सुन लो तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन बाय लार्ज एंड फार कवर हो जाता है. So what we will be doing what we will be doing in this lecture is we'll be looking at the basic anatomy, the physiology, and then some salient diseases जो कि examination point of view से important है, like diverticular disease, large intestine का cancer of the large intestine, ulcerative colitis. तो इस तरह ये तीन चार diseases हैं जो कि which are quite important from examination point of view and from the point of view as a surgeon even, because these are the cases you mostly come across when it comes to the large intestine. Coming to the coming to the anatomy. Anatomy में हमने देखना है कि what is large intestine. Large intestine extends from the ileocecal junction, जहाँ ileum और cecum आके मिलता है. सीकम की बेस पे अपेंडिक्स होता है. रिमेंबर वी हैव स्टडीड अबाउट इट. जहाँ ये जो टीनिया कोलाई हैं, 3 लॉन्गिट्यूडनल बैंड इस तरह के आके जहाँ कन्वर्ज होते हैं वहाँ अपेंडिक्स होता है. तो इट्स पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. ileocecal junction से लेकर comprising of the large intestine comprises of appendix, the cecum, the ascending colon on the right side, then the hepatic flexure of the colon, whole of the transverse colon, the left flexure or the splenic flexure of the colon, and the descending colon, sigmoid colon, rectosigmoid, and up to the rectum and anal canal. ठीक है, एनस और एनल कैनाल को सेपरेटली डील करते हैं, लेकिन अप टू द रेक्टम जो है दिस इज ऑल बेसिकली दिस इज ऑल लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, तो इसमें द कंपोनेंट्स आपको पता चल गए हैं. द पिक्चर इज अ मिरर इमेज. आपको पता है कि लेफ्ट साइड जो है राइट साइड नजर आती है, राइट साइड लेफ्ट साइड नजर आती है व्हेन यू लुक एट अ पिक्चर. सो ऑन द राइट साइड वी हैव सीकम, द असेंडिंग कोलन, राइट हेपेटिक फ्लेक्चर. लिवर राइट साइड पे होता है तो हेपेटिक फ्लेक्चर ऑफ कोलन आता है, फिर ट्रांसवर्स कोलन, देन स्प्लीन इज ऑन द लेफ्ट साइड. यू नो दैट लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में होती है, तो लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर आता है जिसको स्प्लेनिक फ्लेक्चर भी कहते हैं, एंड देन descending colon, sigmoid shaped होता है, it's because of the shape, and then sigmoid के बाद rectum and anus and anal canal. Large intestine पहचानी जाती है, you recognize it by its hostrations. Hostrations are large outpouching जिस तरह आपको नजर आ रही है, segmentation हुई हुई है in larger chunks. This is called hostration, and this is a typical feature of the large intestine. कमिंग टू द ब्लड सप्लाई ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, अगर आप ये समझ लोगे तो आपको ऑपरेशंस के राइट हेमिकोलेक्टमी क्या होती है, ट्रांसवर्स कोलेक्टमी क्या होती है, लेफ्ट हेमिकोलेक्टमी क्या होती है, एंटीरियर रिसेक्शन क्या होती है, उसमें इट विल हेल्प यू अ लॉट बिकॉज all these procedures of the large gut they are basically based upon the anatomical blood supply of the gut. The gut is supplied, the large intestine is supplied by basically branches of the descending aorta, abdominal aorta, जिसमें mainly the superior mesenteric and inferior mesenteric होती हैं. ठीक है, this is the superior mesenteric. Superior mesenteric arises directly from the descending aorta in the abdomen, and it gives off superior mesenteric, ileocolic, appendicular branches देती है, then marginal artery देती है, and then this marginal artery जो है ये जाके anastomosis करती है with inferior mesenteric. Okay, so the branches which are given by the superior mesenteric, which is directly a branch of the descending aorta, are the ileocolic branches at the junction of the ileum and the colon, the appendicular arteries, the appendicular vessels, then the right colic vessels, the middle colic vessels, and the marginal vessels, which anastomose with
the branches coming from the left side, which are a branch of the inferior mesenteric. तो आपका up to the ileocolic junction, appendix, cecum, ascending colon, right, जो कि hepatic flexure of colon, and proximal one third of the transverse colon up to here. One third of the transverse colon is supplied by the superior mesenteric vessels, and the rest of the gut, which includes the distal two-third of transverse colon, the splenic flexure or the left flexure of the colon, the descending colon, sigmoid, rectosigmoid की जो branches हैं वो they are mainly from up to the rectum पे जो होती हैं inferior mesenteric होती हैं, which are left colic, sigmoidal vessels, and then again वो जो arcade जो बन रहा है marginal arteries का, ये सारा जो है it's a rich anastomosis between the superior and the inferior mesenteric, which are both direct branches of the abdominal aorta. उसके बाद if you go down further into the rectum and anal canal, then जो when the aorta splits into common iliacs further splits into internal and external iliacs on each side. तो जो इंटरनल आइलिया की जो ब्रांचेस हैं मिडल एंड इंफीरियर रेक्टल, वो सप्लाई जाके करती हैं आपका लोअर पार्ट ऑफ द एनस एंड एनल कैनाल को. So it's a rich anastomosis, mainly between superior mesenteric, inferior mesenteric, and then as we go low down, there is also an extensive anastomosis between the internal with the internal iliac through middle and inferior rectal arteries or the vessels. और ये सारी जो all these vessels are found in the mesenteric side of the abdominal cavity. इधर सारा ये जो mesentery होती है जिसके अंदर ये vessels रन कर रही होती हैं, and mostly ulcers and necrosis जो है anti mesenteric border पे ज़्यादा common होता है, क्योंकि this is the area distant from the blood supply, anti mesenteric. तो mesenteric border is में सारे ये arcades बने होते हैं which segmental supply कर रहे होते हैं, and which makes it very rich in its blood supply. Okay, are you getting my voice? Okay, I hope you are. और उसके बाद अब now we have understood the blood supply. उसके बाद what is the physiology of the large intestine? What does it do? Large intestine is approximately 1.5 meters long, and it is the widest part of the GI tract के wider parts में से होते हैं cecum including, और its average diameter is 6 centimeters. ठीक है, अगर 6 से ज़्यादा हो जाए तो हम 8 तक पहुंच जाए, तो 8 से ज़्यादा हो जाए तो we call it toxic megacolon, जिसका rupture होने का ज़्यादा चांस होता है. ठीक है, colon as we have discussed earlier, it comprises of what? The ascending cecum, the ascending part, the hepatic flexure, the transverse part, the splenic flexure, the descending part, the sigmoid part, and then the rectum. तो इसके पार्ट्स में है अपेंडिक्स, एज वी गो फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल. अपेंडिक्स आइलियोसेकल जंक्शन है, फिर अपेंडिक्स है, फिर सीकम है, फिर असेंडिंग कोलन है, फिर ट्रांसवर्स कोलन है, फिर डिसेंडिंग कोलन, देन कम्स द सिग्मॉइड एंड देन रेक्टम इन द एंड. ठीक है, और व्हाट डज इट डू? ये जो इतना 1.5 मीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर इतना वाइड चीज है, इट इज थ्रोन इनटू मल्टीपल फोल्ड्स, जो कि विजिबल फोल्ड जो है, जो कि सेगमेंट्स जो आउट पाउचिंग बल्जिंग सी जो लग रही हैं, दीज आर हॉस्ट्रेशंस, नॉर्मल फाइंडिंग्स होती हैं. एंड इट हैज 3 longitudinal fibers, as I told you earlier, the tinea coli running along its long axis. और जहाँ ये आइलियोसेकल जंक्शन के पास आके कन्वर्ज होते हैं, दैट कन्वर्जेंस पॉइंट इज द बेस ऑफ द अपेंडिक्स. ओके, नाउ व्हाट डज द लार्ज इंटेस्टाइन डू? Large intestine is basically concerned with receiving large amounts of volume, about 500 ml of chyme. Chyme is indigestible residues, unabsorbed biliary components, unabsorbed fluid होता है per day के हिसाब से ये आता है, इसमें 500 ml और more. और गैस्ट्रोआइलियल रिफ्लक्स होता है, जो आइलियम से एम्प्टिंग होती है आइलियोसेकल वाल्व पे जाके, रिलैक्सेशन ऑफ द वाल्व एंड motility of the gut or the peristalsis causes emptying into the cecum and then hence forward.
So the large gut is basically involved with your reabsorption and or the secretion of the fluid homeostasis के लिए, and bicarbonate and electrolyte balance में इसका बहुत ज़्यादा role होता है. Absorption of fluid and electrolytes, mainly the sodium and chloride, and secretion of potassium in place of sodium and bicarbonate in place of chloride, and there's a lot of goblet cells इसमें ज़्यादा mucin producing cells बहुत ज़्यादा होते हैं, and mucus production is also one of its functions. And then again another function being the formation of fecal feces, its storage and periodic elimination or excretion of the fecal matter, जो कि which is under voluntary and involuntary control के साथ जो होता है. So there are some diseases which are more pertinent or more common in the large intestine, which I told you we'll be discussing 2-3 main diseases, which are also important from your examination standpoint. Okay, the first being the diverticular disease. Diverticular disease, divertically क्या होते हैं? Diverticula is the singular, diverticulum is the singular, and diverticuli is the plural. डायवर्टिकुलर होते हैं आउट पाउचिंग्स को क्या डायवर्टिकुलर कहते हैं. जिसमें एक तो हॉस्ट्रेशंस हमने देखी है, नॉर्मल फाइंडिंग है, बट डायवर्टिकुलर जिसमें गाड़ी का टायर साइड से फूल जाए, ठीक है ना, आप एक वीकनेस हो वॉल की, उसमें साइड में एक ट्यूब है जो साइड से जहाँ से पंचर लगा होता है वहां से बल्ज आउट कर जाए, तो दीज आर डायवर्टिकुली होते हैं. बाय डेफिनेशन colonic diverticulum is a sac like out pouch या protrusion of colonic mucosa and submucosa, and protrudes through the muscularis layer, जो आपको पता है कि the layer of large intestine is composed of innermost mucosa, then muscularis layer, then the serosa, and then the outside colonic fat आती है, और फिर other adjacent structures आ जाते हैं. तो इसमें दो तरह के होती हैं आउट पाउचिंग्स, ये जो हम बात कर रहे हैं. एक में होती है कि पूरी वॉल कंप्लीट होती है, विच आर डायवर्टिकुला, और ट्रू और फॉल्स डायवर्टिकुलम जो होते हैं. ट्रू डायवर्टिकुलम में ऑल द लेयर्स, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एंड सिरोजा सारे होंगे, लेकिन जो सूडो डायवर्टिकुलम होंगे उसमें सिर्फ थ्रू द मस्कुलरिस वॉल की वीकनेस की वजह से सिरोजा इंटैक्ट होगा, लेकिन म्यूकोजा जो होगा ना वो मस्कुलरिस के अंदर से आउट पाउच करके सिरोजल सरफेस पे उसकी आउट पाउचिंग हुई भी होगी. ठीक है. सो मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी है अभी पिक्चर्स में डायवर्टिक. सो डायवर्टिकुलोसिस इज द प्रेजेंस ऑफ डायवर्टिकुला. डायवर्टिकुलाइटिस ज्यादातर ओल्ड एज की डिजीज होती है और लेफ्ट साइड पे ज्यादा कॉमन होता है. लेफ्ट जिस तरह अपेंडिक्स पेन राइट आइलिएक फॉसा में होती है, ज्यादातर लेफ्ट आइलिएक फॉसा पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ. तो डायवर्टिकुलोसिस इज द प्रेजेंस ऑफ डायवर्टिकुला. ओके. And diverticulitis, itis always stands for inflammation or infection of that particular organ. Cholecystitis, appendicitis, ठीक है, gastritis. तो ये इसको अगर डायवर्टिकुलोसिस हो, डायवर्टिकुलस पहले से प्रेजेंट हो और उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो दैट इज कॉल्ड डायवर्टिकुलाइसिस, डायवर्टिकुलोसिस, डायवर्टिकुलाइटिस, सॉरी, इट इज कॉल्ड डायवर्टिकुलाइटिस, एनी इन्फेक्शन. एंड डायवर्टिकुलर डिजीज इज एन एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेज, जिसमें ब्लीडिंग होती है, वेट लॉस होता है, लेफ्ट आइलिएक फॉसा पेन होती है, एंड वो भी आगे आपको और क्लियर होता है कि क्या क्या इसमें इन्वॉल्व होता है. ओके. सो डायवर्टिकुलोसिस इज आउट पाउचिंग होती है. ट्रू होता है, फॉल्स होता है जिसमें पूरी वॉल होती हैं, और सूडो जो होता है जिसमें पूरी वॉल नहीं होती है. ठीक है. डायवर्टिकुलर डिजीज की डेफिनेशन के बाद ओके, सी दीज आर द डायवर्टिकुला. ये आपको ल्यूमेन नजर आ रहा है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसके अंदर से ये देखो मस्कुलरिस लेयर के अंदर से म्यूकोजा उसके थ्रू डिफेक्ट के थ्रू आउट पाउच कर रहा है. ठीक है. ये फॉल्स डायवर्टिकुला है, सूडो डायवर्टिकुलर फॉर्मेशन है, जिसमें ऑल लेयर्स ऑफ द गट वॉल नहीं इन्वॉल्व, कोलन की सारी वॉल नहीं है, सिर्फ म्यूकोजल आउट पाउचिंग है. ट्रू डायवर्टिकुला होता है अगर सारी वॉल की लेयर्स साथ इसके आउट पाउच कर रही हो, म्यूकोजा भी हो, सब म्यूकोजा भी हो, मस्कुलरिस लेयर भी हो, सिरोजा भी हो. इसमें सिर्फ फॉल्स के अंदर सिर्फ म्यूकोजा आउट पाउच कर रहा है. तो ट्रू और फॉल्स इनको कहते हैं. दे आर यूजुअली फाउंड टीनिया को लेके ज्यादा पास ही ज्यादातर ये पाए जाते हैं. ओके. पैथोजेनेसिस क्या होती है? रेक्टम इज मोर
large intestine का it's a more muscular and robust part, तो it's usually uncommon in the rectum. एंड द एरियाज ऑफ हाई प्रेशर होते हैं जहाँ आउट पाउचिंग हो जाती है, जिसके पैथोफिजियोलॉजी और पैथोजेनेसिस में डाइटरी इनटेक का के लो डाइटरी फाइबर का बहुत ज़्यादा रोल है. Here on the right side you can see multiple out pouchings. तो ये प्रॉबेबली म्यूकोजा की लग रही हैं आपको, सिर्फ इसमें पूरी वॉल कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स डायवर्टिकुलोसिस हो सकता है. How is it? What is the pathogenesis or how does it happen? लार्ज वॉल्यूम आता है, अगर उसकी सेगमेंटेशन हो जाए, उधर उसकी स्टेसिस ज्यादा हो, ज्यादा हो जाएगी डाउनलोड. हेलो, आवाज आ रही है? अच्छा, तो लेस फाइबर इनटेक, पुअर स्ट्रीम हो, ज्यादा उधर जाके एक जगह पे स्टेसिस रहे, तो उधर आउट पाउचिंग होने के ज्यादा चांसेस होते हैं. इट इज मोर कॉमन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, increases with age. 30% over the age of 60 years have diverticular disease in the west. Europe में ज़्यादा common है ये disease, and 60% of the people over the age of 80 years have diverticular disease to some extent. So it's quite common, and it's basically a disease of the old age, और male और female predisposition इसकी equal है. There is not much difference between male and female इसकी prevalence में. It's equal in both. How does the patient present? Usually हमें बताया कि 60% even at the age of 80 plus इनको diverticulosis होता है. Usually it's asymptomatic, but it may present with crampy lower abdominal pain, left iliac fossa discomfort and pain, which would mimic left-sided acute appendicitis-like pain. रैबिट लाइक स्टूल्स होंगे, स्मॉल हार्ड पेलेटी स्टूल्स होंगे जो कि ज़्यादा देर स्टेगनेंट रह रहे हैं कि एक वॉल की आउट पाउचिंग में फंस के डायबिटिकली करते हैं. एंड बिकॉज दिस इज एन एज ओल्ड एज की डिजीज है, इसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है, सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ बाउल्स भी हो सकता है, और बार बार ब्लीडिंग और इन्फेक्शन हो सकते हैं. और इस एज पे बीइंग द ओल्ड एज, इट कैन मिमिक something sinister, like it can be a cancerous growth, underlying cancerous growth. तो इसको रूल आउट करना बहुत जरूरी होता है सिनेस्टर पैथोलॉजी को. Here you see it's a contrast study, बेरियम हुआ हुआ है, कोई कंट्रास्ट डाई गया हुआ है जिसके साथ आउटलाइन ऑफ द लार्ज गट, ये हॉस्ट्रेशंस आप देख रहे हैं कोई भी, और मल्टीपल डायवर्टिकली आपको नजर आ रहे हैं, आउट पाउचिंग्स नजर आ रही हैं मल्टीपल. तो दिस इज डायवर्टिकुलोसिस, जहाँ जाके डाई फंस गया हुआ है. आउट पाउचिंग्स आप देख रहे हैं थ्रू आउट द वॉल. So this is diverticulosis, और this is one of the investigations जिसमें बेरियम स्टडीज हैं जिसमें आप इसको डिलीनिएट कर सकते हैं. And then comes the colonoscopy. You can go in through the scope. आप कैमरा के साथ अंदर जाते हैं, you directly visualize the divertically. ये आप देख रहे हैं, you are looking from inside the lumen of the large gut, और बिटवीन द हॉस्ट्रेशंस वो आप देख रहे हैं जहाँ फीकल मैटर भी एम्बेड हुआ हुआ है, ट्रैप हुआ हुआ है, फ्लैगमन सा बना हुआ है. तो ये जो आउट पाउचिंग्स के अंदर ये आउट पाउचिंग जो बनी हुई है, ये डायवर्टिकुलोसिस हुआ हुआ है. बेरियम स्टडीज आपको डिलीनिएट करने में, इसको डायग्नोसिस में हेल्प करती हैं. सो डू द कोलोनोस्कोपी. एंड लेकिन कोलोनोस्कोपी के एडेड एडवांटेज ये है कि अगर आपको कोई सिनेस्टर पैथोलॉजी लगे, इफ यू आर सस्पेक्टिंग कैंसर और सम अदर डिजीज प्रोसेस गोइंग ऑन, या यू वांट टू टेक ए टिश्यू सैंपल, तो इससे आप टिश्यू सैंपल ले सकते हैं. सो इट हैज बोथ visual diagnostic and histopathologically diagnostic value as well, the scopies, the colonoscopies. Okay, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? यू गिव हाई फाइबर डाइट. हाई फाइबर डाइट देते हैं, गट की मोटिलिटी को आप सही रखते हैं. हाई फाइबर डाइट इन द फॉर्म ऑफ ब्रान, होल व्हीट आप देते हैं. रिड्यूस द पेन के, टू रिड्यूस द पेन आप पेन किलर्स देते हैं, फाइबर सप्लीमेंट्स देते हैं, एंटीस्पेज़मोटिक्स देते हैं कि कॉलिकी पेन और जो बार बार डिस्कम्फर्ट है वो ना हो. तो दीज आर द इनिशियल ट्रीटमेंट्स. और डायवर्टिकुलाइटिस अगर हो जाए, अगर इन्हीं डायवर्टिकुली के अंदर रिपीटेड इन्फेक्शंस हो रहे हो, तो वो क्या होता है? लेट्स सी. सॉरी, डायवर्टिकुलाइटिस जब मैंने कह दिया कि इन्हीं डायवर्टिकुली के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो वो डायवर्टिकुलाइटिस बन जाता है. ठीक है ना? उसमें क्या होता है? What is happening?
wait please. Excuse me. यार ये स्लाइड नहीं खुल रही. बेसिकली ओके, आई एम गोना टेल यू. बेसिकली व्हाट हैपेंस इज डायबिटिकुलाइटिस इज द इन्फेक्शन. उससे अगर इन्फेक्शन होता है तो फ्लैगमन बनता है, विच इज जो कि आपको पीछे कोलोनोस्कोपी वाली पिक्चर में नजर आ रहा था, विच इज म्यूकॉइड एंड मिक्स विद फीकल मैटर. और ये अगर उधर पड़ा रहे रिपीटेड इन्फेक्शन और फाइब्रोसिस की वजह से इट कैन रिजल्ट इन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन. एंड डायबिटिकुलाइटिस में पहले हमने देखा है कि अगर स्पेशली इन फॉल्स डायबिटिकुली जिसमें पूरी वॉल नहीं होती, ओनली द म्यूकोजा इज आउट पाउचिंग, तो इट्स अ स्ट्रक्चरल वीकनेस इन द lumen or the wall of the large intestine, and it can lead to perforation. Perforation in itself in turn can be localized. छोटी perforation हुई, उधर adjacent structures, adjacent gut loops जो पड़े हैं, उन्होंने आकर उसको seal off करने की कोशिश की. The policeman of the abdominal cavity, which is the omentum उधर आया और उसने contain करने की कोशिश की, and if it succeeds, so it results in localized collection or abscess formation. अगर वो ना these attempts fail by the body homeostasis के लिए, तो then it results in generalized peritonitis. इसमें पूरे पेट में spillage of the fecal matter और gut contents हो जाते हैं. और जो अगर लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिकुलाइटिस में बार बार इन्फेक्शन हुआ, हील हुआ, इन्फेक्शन हुआ, हील हुआ, उसके स्कारिंग हुई, वॉल के अंदर स्कारिंग हुई, तो उससे क्या हो सकता है? फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकता है. फिस्टुला बनने से क्या हो सकता है? फिस्टुला कैन बी बिटवीन द एडजेसेंट कोलोकोलिक हो सकता है, कोलो वेजाइनल हो सकता है कि अगर वो वेजाइना के साथ जाके एबनॉर्मल कम्युनिकेशन कर दे. कोलो वेजाइकल हो सकता है अगर ब्लैडर के साथ जाके एबनॉर्मल ओपनिंग इन द लार्ज इंटेस्टाइन जाके कम्युनिकेट कर जाए. कोलो कोलिक हो सकता है, कोलो आइलियल जो भी एडजेसेंट गट लूप उसके साथ हो सकता है. स्किन के साथ निकल है, कोलो कोटेनियस हो सकता है. तो फिस्टुला क्या होता है वैसे? फिस्टुला इज एन एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन टू एपिथेलियल सर्फेसेस. तो इसमें ये एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है. एंड आगे डायबिटिकुलाइटिस यूजुअली किससे आता है? आपके पास प्रेजेंट करता है लोअर एब्डोमिनल पेन, क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन, डल होती है, लेफ्ट आइलेक फॉसा में ज्यादा होती है. एन ओल्ड पेशेंट आपको मिले तो आपने ज्यादा इस तरह की पेन के साथ है तो आपने ज्यादा सस्पेशन रखना है. आइटिस है, अगेन इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन है, तो देयर इज बाउंड टू बी पायरेक्सिया, व्हिच इज मे नॉट बी अ वेरी कांस्टेंट फीचर इन एडल्ट्स, क्योंकि immunocompromised or adults में there are different many kinds of presentations. They can present with just altered mental state. तो इसमें बहुत सारी चेंजेस होती हैं. तो पायरेक्सिया हो सकता है. टेंडरनेस एंड गार्डिंग इन द लेफ्ट आइलेक फॉसा, व्हिच इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द एक्यूट अपेंडिसाइटिस इन द राइट आइलेक फॉसा. इंक्रीज्ड व्हाइट सेल काउंट होगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन रेज हुई भी होगी, डिलेड. इसके ऐसी सिचुएशन हो तो आप जो कोलोनिक इमेजिंग होती है जिसमें डाई डालना होता है या बेरियम या कंट्रास्ट देना होता है, वो आप डिले थोड़ा सा करते हो. एक्यूट सिम्टम्स को यू वेट फॉर द एक्यूट सिम्टम टू सेटल, बिकॉज द गट का जो कोलन का जो म्यूकोजा एंड वॉल होती है वो फ्राइबल हुई भी होती है, इजीली ट्रॉमेटाइज हो सकती है. तो यू अवॉइड पुटिंग इट थ्रू फर्दर स्ट्रेस. यू हील द एक्यूट सिम्टम्स एंड देन यू थिंक ऑफ डूइंग समथिंग एल्स. ओके. मैनेजमेंट, सबसे पहले ऐसे पेशेंट जब आपके साथ प्रेजेंट किए हैं, पेन है, फीवर है, खा पी नहीं सक रहे, एनोरेक्सिया, नोजिया है, ब्लीडिंग पीआर, ब्लीडिंग पर रेक्टम के साथ भी आ सकते हैं, तो उनमें आप दे आर यूजुअली डिहाइड्रेटेड, आप उनको रिहाइड्रेट करते हैं. फ्लूइड लॉस, इलेक्ट्रोलाइट लॉस इम्बैलेंस जो है, यू ट्राई टू करेक्ट दैट एंड यू गिव ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बेस्ड अपॉन द कोलोनिक जो पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया होती है उसको आप के हिसाब से यू केटर फॉर अकॉर्डिंग टू द ब्रॉड, यू गिव ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स एंड फ्लैजिल मेट्रोनिडाजोल, ताकि आप एरोबिक एनारोबिक दोनों और ग्राम नेगेटिव कवरेज आप सारा दे रहे होते हैं. एंड इफ द सिम्टम्स स्टार्ट टू रिजॉल्व, फीवर खत्म होना शुरू हो जाए, पेन कम हो जाए और उसको ब्लीडिंग पीआर पर रेक्टम कम हो जाए, तो देन यू कैन शिफ्ट दीज ड्रग्स टू ओरल फॉर्म. And later after 4 to 6 weeks, जब acute inflammatory phase जब settle होते हैं in the 4 to 6 weeks, so then you can go for these barium studies like we mentioned earlier. Abscess कब बनती है? अगर ये जो itis हुआ हुआ, infection हुआ हुआ, it fails to resolve, पेशेंट बहुत ज़्यादा debilitated है, immunocompromised है, या infective load इतना ज़्यादा था कि उधर हो गया, तो उधर abscess formation हो जाती है, contained cavity सी बन जाती है. And abscess के typical feature होता है spiking fever होता है, and later on as the abscess
increases in size, it can become a palpable large mass in the abdomen, in the abdomen. एब्सेस की क्या मैनेजमेंट होती है? अगेन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स तो आप देते हो, लाइक पिपरासिलिन, टाइजोबैक्टम, टाइकार्सिलिन वगैरह आप देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एंटीबायोटिक्स विल स्प्रेड द फर्दर वर्सनिंग ऑफ द एब्सेस और द फर्दर प्रोग्रेशन, बट एक दफ़ा एब्सेस बन जाए तो एब्सेस के अंदर की जो सेंटर होता है उसके अंदर नेक्रोटिक टिश्यू एंड डेड सेल्स होते हैं, उसकी ब्लड सप्लाई कोई नहीं होती, तो ब्लड सप्लाई नेवर रीचेस देयर। तो स्किन के थ्रू जाके अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेशन ऑफ द एब्सेस आप कर सकते हैं। रिपीटेड एस्पिरेशंस भी चाहिए हो सकती हैं, ठीक है। तो परक्यूटेनियस ड्रेनेज करते हैं अंडर सीटी गाइडेंस और अल्ट्रासाउंड गाइडेंस। एंड देन अगर उससे भी ना हो रहा होता है, राइट साइड पे आपको हार्टमैन आगे दिखाते हैं कि आपको हार्टमैन प्रोसीजर क्या होता है। तो आप उसको डिजीज पार्ट को रेस्ट दे के पहले आप उसको पहले डिस्कनेक्ट कर देते हैं ताकि डिस्टल पार्ट को रेस्ट मिल जाए, वो हील हो जाए, और उतनी देर में आप एक टेम्परेरी स्टोमा बना देते हैं जहां से फीकल मैटर डाइवर्ट कर देते हैं आप। ओके, परफोरेशन अगर रिपीटेड इन्फेक्शन और वो से और वैसे भी स्ट्रक्चरल वीकनेस इन द वॉल है तो उससे परफोरेशन हो सकती है। परफोरेशन से क्या होगा? अगेन लोकलाइज्ड है या जनरलाइज्ड है। परफोरेट जब भी हो गया तो एयर जो होती है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर नहीं होती, ये हॉलो स्ट्रक्चर्स के अंदर होती है। फॉर एग्जांपल ये गट के अंदर, स्मॉल बाउल लार्ज बाउल के अंदर एयर पाई जाती है। तो अगर एयर वुड बी आउटसाइड द गट इन द पेरिटोनियल कैविटी, फ्री एयर होगी, तो दैट इज रिप्रेजेंट्स परफोरेशन, कि कोई हॉलो विस्कस आपका परफोरेट किए जहां से एयर लीक हुई है। इन द पिक्चर टू द राइट ये जो एक्सरे है आप देख सकते हो, दिस इज एन एक्सरे चेस्ट। एक्सरे चेस्ट है जिसमें आपका डायफ्राम नजर आ रहा है, ये जो बिल्कुल क्रीसेंट लाइक ये जो नजर आ रहा है, होप यू कैन सी इट, ये जो मार्कर से मैं आपको दिखा रहा हूँ पॉइंटर से, दिस इज द डायफ्राम, द वाइट स्ट्रक्चर, क्रीसेंट लाइक वाइट स्ट्रक्चर। नॉर्मली सॉलिड स्ट्रक्चर्स आपको वाइट नजर आएंगे, एयर आपको ब्लैक नजर आएगी, वाटर भी आपको वाइट नजर आता है। तो जो ब्लैक ब्लैक एयर है सारी ऊपर आपको लंग्स में नजर आ रही है। बट नाउ कम टू दिस, ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी है ना, तो इधर एयर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यू आर नॉट सपोज टू हैव एयर बीनीथ द डायफ्राम, तो इसका मतलब है कहीं से लीक होके ये गट से होके एंड बोथ साइड्स। ये जो नीचे अलग से एक शैडो नजर आ रहा है, एयर फ्लूइड नजर आ रही है, स्टमक बबल है, स्टमक के अंदर तो नॉर्मली एयर होगी ना, जो आप बर्प आउट भी करते रहते हैं। ओके, तो बट दिस एयर विच इज बीनीथ द डायफ्राम आउटसाइड द गट, दिस इज रिप्रेजेंट्स परफोरेशन की, हॉलो विस्कस परफोरेट किया जहां से एयर लीक हुई है। तो परफोरेशन जो होती है तो सडन ऑनसेट ऑफ एब्डोमिनल पेन होती है, शुरू में जरा डल होती है, फिर बाद में शार्प और डिमार्केटेड हो जाता है एज पेराइटल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम और फिर पेराइटल पेरिटोनियम इरिटेट होता है। तो जनरलाइज एब्डोमिनल पेन ऑफ सडन ऑनसेट होती है। टेंडर एब्डोमिन हुआ होता है, एब्डोमिनल मसल्स में गार्डिंग की होती है, टाइट हुए होते हैं ताकि अंदर ज्यादा हिलजुल ना हो सके, दर्द ना हो। आप दबाएं तो दबाने पे भी दर्द होगी, टेंडरनेस होगी, और एकदम आप छोड़े रिबाउंड टेंडरनेस भी होगी। और एक्सरे में आपको इरेक्ट चेस्ट एक्सरे में आपको एयर अंडर द डायफ्राम नजर आएगी, विच इज वेरी क्लियरली विजिबल इन दिस रेडियोग्राफ। परफोरेशन होगी, व्हाट टू डू, अर्जेंट एडमिशन थ्रू इमरजेंसी, अर्जेंट रिससिटेशन विद आईवी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। आप उसको करेक्ट करेंगे। अगेन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आप शुरू करा देंगे सेप्टिसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए। इमरजेंसी हार्टमैन्स प्रोसीजर, I'll show you dramatically what is Hartmann's procedure, इसका समझ नहीं आता। एंड आप थॉरली एब्डोमिनल कैविटी को धोगे जहाँ सारा फीकल मैटर का स्पिलेज हुआ हुआ है, इरिटेंट होता है, बाइल इसके अंदर होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड जूसेस होते हैं, तो आप उसको एब्डोमिनल कैविटी को एक्सटेंसिवली विद मेनी लीटर्स ऑफ नॉर्मल सलाइन आप वॉश करते हैं। इतना वॉश करते हैं कि जब तक पूरी एब्डोमिनल कैविटी क्लियर नहीं हो जाती, और जितना आप जैसा आप पानी क्लियर डाल रहे हैं वैसे ही क्लियर पानी आपको वापस नहीं मिलना शुरू हो जाता। But even then, perforation has a high mortality in these cases because the patients are usually old and debilitated and they have concomitant diseases along with it. ठीक है? Okay. ठीक है, हाई मोर्टेलिटी होती है इसकी। एंड देन एक तो प्रॉब्लम होगी परफोरेशन होगी, दूसरी हो सकती है फिस्टुला फॉर्मेशन। फिस्टुला फॉर्मेशन मैं आपको बताया था, एन एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन टू एपिथेलियल सर्फेसेस। एपिथेलियम जिस तरह गट का है तो कोलन का है तो कोलोनिक, और अगर वेसिकल
हो जाए ब्लैडर के साथ, उसके एपिथेलियम के साथ एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाए तो कोलोवेजाइकल फिस्टुला बन जाएगा, जिसमें क्या होगा कि फीकल मैटर इन द यूरिन पेशेंट को आ रहा होगा, द यूरिन विल स्मेल लाइक फीसेस, और उसमें आपको फीकल मैटर आपको नजर आ सकता है इफ इट्स लार्ज इनफ। कोलोवेजाइनल हो तो फीकल डिस्चार्ज थ्रू द वेजाइना हो जाएगा। इट्स एन एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन द कोलोनिक epithelium and the vaginal epithelium। और कोलो एंटेरिक हो सकता है, कोलो कोलन एडजेसेंट कोलन के साथ फिस्टुला बना सकता है, लूप ऑफ कोलन के साथ, आईलियम के साथ बना सकता है, कोलो एंटेरिक मतलब आपस में हो सकते हैं, स्किन के साथ फिस्टुला बन जाता है। स्किन इज आल्सो एन एपिथेलियल सरफेस। तो कोलन से परफोरेशन हुई, उसने डायरेक्ट जाके स्किन के साथ एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बना लिया और उधर से बाहर स्किन के थ्रू आपके ये फीकल मैटर और ये निकलना शुरू हो जाता है, जैसे कोलोकुटेनियस फिस्टुला। सिम्टम्स होंगे अकॉर्डिंग टू द टाइप। मैं आपको बताऊँ, कोलोवेजाइकल होगा तो यूरिनरी सिम्टम्स में आपको फीकल मैटर, बैड स्मेल और वो सारा रिपीटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। अगर कोलोवेजाइनल होगा तो कोलोनिक म्यूकोजा बैक्टीरिया और सिक्रीशंस की वजह से कोलोनिक इन्फेक्शन जो ज़्यादा होंगे वो वेजाइना में हो रहे होंगे, देयर विल बी फाउल डिस्चार्ज। एंड कोलोएंटेरिक में भी सिनास्टेसिस और सारा परफोरेशन, एंड देन कोलोकुटेनियस में स्किन के थ्रू आपको नजर आ रहा होगा ऑल दिस थिंग हैपनिंग। तो कोलोवेजाइकल होगा तो रिकरेंट यूटीज आए होंगे, न्यूमेट यूरिया होगा, बबल्स आ सकते हैं आपको यूरिन के साथ, आपको फीकल जिस तरह आपका पैसेज ऑफ गैस होती है वो हो सकता है, फीकल यूरिया हो सकता है। कोलोवेजाइनल में प्रायर हिस्टेरेक्टोमी की हिस्ट्री होगी, कोई ना कोई प्रोसीजर हुआ होगा और फ्लैटस और फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज पर वेजाइना में हो रहा होगा। कोलोकुटेनियस लाइक आई टोल्ड यू इन ड्यूरेशन होगी, उधर से स्किन के थ्रू आपको फीकल मैटर निकल रहा होगा, सेलुलाइटिस होगा, एयरगियर इन्फेक्शन हुआ होगा सराउंडिंग स्किन में। फिस्टुला की मैनेजमेंट क्या है, आप उसको ये एरो बनाया हुआ है, कोलोवेजाइकल फिस्टुला बना हुआ है ये। इसमें को बेरियम जो आप कोलन के अंदर बेरियम डाई आप कहते हैं वो आपको यूरिनरी ब्लैडर में आता हुआ नजर आएगा, उधर भी वो गया हुआ होगा, ठीक है। और डायरेक्ट आप स्कोप करके एंडोस्कोपी से भी आप देख सकते हैं, और इसमें रिपेयर किया जाता है और मेंटल पैच भी रखा जाता है फॉर द रिपेयर। ओके, स्ट्रक्चर जब बनता है, स्ट्रक्चर भी 10% ऑफ अबाउट 10% से ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ओवर लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिकुलर डिजीज। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन होती है, कॉन्स्टिपेशन ऑल्टरनेटिंग विद डायरिया होता है, थिन स्ट्रीक्स ऑफ स्टूल्स होते हैं, सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन होती है, ज्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है और एब्डोमिनल ब्लोटिंग और डिस्टेंशन ज्यादा होती रहती है क्योंकि स्ट्रक्चर है तंग हुआ होता है, उधर से जख्म बन बन के गट का वो पार्ट उधर से स्ट्रक्चर नैरोइंग हुई होती है, तो उसकी वजह से सारे रिटेंशन वाले ज्यादा फीचर्स आ रहे होते हैं। स्ट्रक्चर की मैनेजमेंट में क्या होती है कि मैलिग्नेंसी एक्सक्लूड करना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज स्ट्रक्चर इट कैन बी हार्बरिंग अंडरलाइंग मैलिग्नेंसी। बेरियम एनीमा में वही आपको कंस्ट्रक्शंस नैरोइंग नजर आ जाती हैं, डायरेक्ट आप कोलोनोस्कोपी करें तो उसमें भी आप डायरेक्ट विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ इट आप यू कैन टेक दिस टिश्यू सैंपल फॉर हिस्टोपैथोलॉजी, एंड इसमें सिग्मोइड कोलेक्टमी की जाती है। डायबिटिकुलर डिजीज और ये जो सारे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन की डिजीजेज हैं, ये ब्लीडिंग को रेक्टम के साथ भी आ सकती हैं, क्योंकि सडन होती है, सिग्निफिकेंट होती है, क्योंकि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में फॉर एग्जांपल स्टमक में या आइलियम में जजनों में ऊपर ज्यादा ब्लीडिंग हो तो ऑल्टर्ड ब्लड आता है, ब्लैक कलर के आपको स्टूल्स आते हैं, मलीना होता है जिसको कहते हैं। बट इन मोस्टली इन द केस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन अगर लो डाउन लीजन होगी तो आपको ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग मिलेगी, और अगर थोड़ा सा ऊपर कोलन में चले जाए असेंडिंग कोलन की साइड पे, सीकम की साइड पे, तो मरून और थोड़ा सा ऑल्टर्ड ब्लड हो सकता है। पेशेंट ब्लीडिंग में भी फ्रैंक, ब्लीडिंग में भी माइक्रोस्कोपिक, और इन केस स्पेशली इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ब्लीडिंग ब्लीडिंग इट कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ी थोड़ी इंसिडियस होती रहती है बिफोर द पेशेंट नोटिसेस, इतना ज्यादा डायरेक्ट वो मैक्रोस्कोपिक नहीं होती, तो इट्स यूजुअली अ लेट प्रेजेंटेशन एंड दीज पेशेंट्स यूजुअली हैव एनीमिया अलोंग विद other symptoms of large gut abnormalities. ब्लीडिंग जो होती है, अगर ब्लीडिंग के साथ पेशेंट प्रेजेंट करे तो आपने रिससिटेट करना है, इसोफेजियो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी करनी है कि ऊपर से ब्लड आ रहा है, टेक्नीटियम इसमें रेड ब्लड सेल्स को आपने रेडियोएक्टिव आइसोटोप से टैग करके देखना है कि कहाँ से लीकेज हो रहा है। नॉर्मली तो वेसल के अंदर रहना चाहिए जहाँ से होगा, बाकी फिर आप वेजो कंस्ट्रिक्टर्स, वेजोप्रेसिन दे सकते हैं, एम्बुलाइजेशन और एंजियोग्राफी करके सिलेक्टिव
ब्लीडिंग जो वेसल एरोड हुई है उसको आप रोक सकते हैं, या यू मे हैव टू गो इन लेप्रोटमी करके सर्जरी करके अंदर जाना पड़े एंड टायर द फीडिंग वेसल जो कि ब्लीड कर रही है. ओके. Then comes ulcerative colitis. What is ulcerative colitis? Ulcerative colitis and Crohn's disease are two of the inflammatory bowel diseases. Crohn's disease आपने पढ़ी होगी इसके अंदर small bowel के अंदर, and ulcerative colitis is usually confined to the large bowel. ज़्यादातर ये एनल कैनाल और रेक्टम से शुरू होती है and spreads upwards. अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज दोनों इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हैं. इनमें सिम्टम्स में काफी ओवरलैप होता है. इसके सिम्टम्स में जो ओवरलैप होता है वो क्या ओवरलैप होता है? दोनों आपके साथ डायरिया ऑल्टरनेटिंग विद कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस, प्रोट्रैक्टेड सिम्टम्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एनीमिया, मल्टीपल इसकी कॉम्प्लिकेशंस एंड सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस के साथ आप प्रेजेंट करते हैं. लेकिन उसमें जो होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में ऑल वॉल फुल थिकनेस ऑफ द वॉल इन्वॉल्व होती है. इसमें यूजुअली म्यूकोजा तक इन्वॉल्व होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में. ठीक है. एंड इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज अ वेरी कंप्लीट डायग्राम है जो आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब पक्का करा सकती है इफ यू लुक एट इट क्लोजली. मैंने आपको जैसे बताया अल्सरेटिव कोलाइटिस इज वन ऑफ द टू मेजर फॉर्म्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज. क्रोन डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस दोनों होती हैं. बट अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो रेक्टम में ज्यादा डेवलप होता है एंड इट मूव्स अपवर्ड्स. इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ ऑस्ट्रेशंस होती हैं. जो नॉर्मल आउट जो उसकी होती है आउट पाउचिंग है, सेगमेंटेशन हुई थी इन द लार्ज गट, वो कोलोनिक ऑस्ट्रेशंस इसमें खत्म हो जाती हैं. ठीक है. लेफ्ट साइडेड भी हो सकता है, पूरी का पूरा कोलन भी इन्वॉल्व हो सकता है, ओनली रेक्टम तक इन्वॉल्व हो सकता है, रेक्टोसिग्मॉइड तक इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या पैनकोलाइटिस हो सकता है, पूरे का पूरा कोलन इन्वॉल्व हो सकता है. इसमें साइंस एंड सिम्टम्स जो होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं? डायरिया विद ब्लडी स्टूल्स होते हैं, म्यूकस ज्यादा प्रोडक्शन होती है, फाउल स्मेलिंग ज्यादा होते हैं, ऑल्टरनेटिंग विद कॉन्स्टिपेशन होता है. बावल मूवमेंट्स में आपको पेशेंट हैज अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी बार बार जाना पड़ता है, सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन होती है, ऑफ एंड ऑन फीवर होता है. और इन सारे बाउल सिम्टम्स की वजह से अल्टीमेटली द पेशेंट प्रेजेंट्स विद नोजिया, वॉमिटिंग, एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक ब्लड लॉस होता है, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज होता है जिससे पुअर इनटेक की वजह से जो होता है, एंड बिगिंस इन द रेक्टम, एक्सटेंड्स अपवर्ड, और पूरी कंटिन्यूटी में पैन कोलाइटिस भी कर सकते हैं, पूरे का पूरा भी इन्वॉल्व हो सकता है. और जैसे हमने बात की थी कि नीचे जो 3 गोले बने हुए अल्सरेटिव कोलाइटिस में पूरी थिकनेस ऑफ द वॉल नहीं इन्वॉल्व होती, म्यूकोजा यूजुअली इन्वॉल्व होता है. और क्रोन्स में इट्स ऑल द वॉल्स आर इन्वॉल्व. ठीक है. इसमें आप मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स देते हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशन होती है, पेशेंट की एजुकेशन की जाती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, और डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स लाइक एजाथायोप्रिन एंड साइक्लोस्पोरिन भी दी जाती हैं. एंड सर्जिकल इंटरवेंशन इज नेसेसरी व्हेन इट फेल्स, द मेडिकल ट्रीटमेंट फेल्स, या वर्सनिंग ऑफ द सिम्टम्स, या परफोरेशन हो जाए, या एब्सेस फॉर्मेशन हो जाए, या तो यू हैव टू गो इन एंड परफॉर्म सर्जरी विच इज, और सर्जरी में इवन पैनकोलेक्टमी भी हो सकती है. पैनकोलेक्टमी क्या होती है? इस डायग्राम में आप देखें, होल ऑफ द लार्ज बाउल इज टेकन आउट, आइलियोसेकल जंक्शन से गट को काटा, उसकी ब्लड सप्लाई सुपीरियर मेसेंटेरिक, इंफीरियर मेसेंटेरिक काटी, अप टू द रेक्टम में तक आपने सारा कर लिया, निकाल दिया, और आप आइलियम को डायरेक्टली एनेस्टोमोज करते हैं विद द एनल कैनाल, एनस के साथ एनेस्टोमोज कर देते हैं. लेकिन आप आइलियम को डायरेक्ट रेक्टम के साथ एनेस्टोमोज करेंगे तो देयर विल बी कंटीन्यूअस ड्रिबलिंग ऑफ फीकल मैटर एंड म्यूकस और होता रहेगा. तो इसके लिए आप इधर पाउच बनाते हैं for the storage of fecal matter to get some sort of control over the dribbling of the fecal matter. तो आप उधर पाउच बनाते हैं at the anal verge, जहाँ आप एनस को एनेस्टोमोज कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ. तो आप उधर एस शेप पाउच बनाते हैं, जे शेप पाउच या डब्ल्यू शेप पाउच जो आप देख रहे हैं. इसमें बेसिकली यू क्रिएट अ रेजर्वॉयर, क्योंकि आइलियम स्मॉल गट है, इसका इतना स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती, इसका डायमीटर इतना बड़ा नहीं होता. तो आप लॉन्गिट्यूडनली इनको ओपन करके एक वॉल को एंटी मेसेंटेरिक बॉर्डर पे
साइड टू साइड एनास्टोमोसिस करके आप एक पाउच बना देते हैं. ओके, दिस इज व्हाट एस शेप, जे शेप और डब्ल्यू शेप ileoanal anastomosis is. Then another common disease is polyposis or polyps of the colon and the rectum. Large gut के polyps दो तरह के होते हैं. These are adenomatous polyps and non-adenomatous polyps. Adenomatous जो होते हैं वो ज़्यादा, जो non-adenomatous हैं वो तो juvenile polyps भी होते हैं. They are only hematomas. They are hyperplastic or outgrowths of the normal cell tissues which are found there. लेकिन it may be part of some syndromes and diseases like inflammatory bowel ulcerative colitis में ये non-adenomatous polyps ज़्यादा होते हैं. और Putz Jaeger जिसमें freckling around the mouth, freckling around the mucous membranes और polyps होते हैं. But the adenomatous polyps जो हैं, they are the more sinister ones. ये depending upon the shape they can be sessile, pedunculated, tubular, villous हो सकते हैं, tubular villous हो सकते हैं. और इनके ना conversion के chances into cancer ज़्यादा होते हैं. ठीक है. और अगर 5 मिलीमीटर से बड़े polyps हों, adenomatous polyps हों, तो उनके कैंसर के में conversion के chances ज़्यादा होते हैं. Villous adenomas larger than 2 centimeter have 50% chance of cancerization. So these are the ones we have to be really careful about, the adenomatous ones. ओके, मैनेजमेंट क्या है इनकी? एंडोस्कोपी करके गो इन थ्रू द एनल कैनाल, एनल वर्ड से आप जाते हैं कैमरे के जरिए और आप इन पॉलिप्स को निकाल देते हैं. उनको नीचे से इनकी बेस को जला भी सकते हैं, उसको स्क्लीरोज भी कर सकते हैं. उसको स्नेयर एक होता है, इस तरह काबूज नहीं सुना, स्नेयर मार फेंकते कटल को पकड़ने के लिए, उस तरह का स्नेयर होता है जो कि उसकी नेक पे जाके टाइट हो जाता है और उसको वहां से टाई कर देता है और उसके ऊपर से आप उसको काट देते हैं. ठीक है. म्यूकोजल एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शन भी कर सकते हैं. एंड इसके अलावा आप ओपन सर्जिकल अप्रोच से भी जा सकते हैं. ठीक है. तो इसका फायदा अगेन वही होता है कि आप टिश्यू सैंपल ले सकते हैं, इसलिए अगर कोई कैंसरस चेंज आ रही है तो आप वो भी नोट कर सकते हैं और एक्सटेंट भी आप देख सकते हैं. और देन देयर इज अ फेमिलियल पोलिपोसिस, एक सिंड्रोम है. पोलिपोसिस सिंड्रोम की टाइप है फेमिलियल एडेनोमेटस पोलिपोसिस. फेमिलियल एडेनोमेटस पोलिपोसिस जो है उसमें बहुत सारे पॉलिप्स होते हैं. हंड्रेड्स ऑफ पॉलिप्स होते हैं इन द लार्ज इंटेस्टाइन और 80% से ज़्यादा इसकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है. इसमें सर्टेन फेमिलियल जीन्स हैं जो कि इसमें कहते हैं कि जिनका म्यूटेशन रोल प्ले करती है. इसलिए इसको फेमिलियल इसलिए कहते हैं, इसमें फैमिली प्रीडिस्पोजिशन बहुत ज़्यादा है, 80%. और 100 से ज़्यादा हंड्रेड्स ऑफ पॉलिप्स आर फाउंड. ठीक है. और इनके 100% चांसेस ऑफ कैंसराइजेशन होते हैं. दे आर लेफ्ट अनट्रीटेड ओवर लॉन्ग पीरियड्स, तो ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं. इसलिए अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हो, थ्रू आउट द कोलन हो, तो पूरे का पूरा कोलन रिमूव करना पड़ता है, सीकम से लेके एनल कैनाल तक, जिसमें पैन प्रोक्टोकोलेक्टमी करते हैं. और फिर जो आईएम होता है उसको एनएस के साथ डायरेक्टली एनास्टोमोस कर देते हैं, जो कि क्या था अभी हमने पीछे जो पिक्चर में एस शेप, जे शेप, डब्ल्यू शेप देखा था, दैट वाज आप ना आइलियल पाउच बना देते हैं आप विद एनास्टोमोसिस विद एनल कैनाल. तो आइलियल पाउच एनल एनास्टोमोसिस, IPAA, आइलियल पाउच एनल एनास्टोमोसिस आप कर देते हैं, व्हिच इज आइलियो एनल एनास्टोमोसिस बेसिकली. और हेमाटोमेटस पॉलिप्स जो होते हैं वो पट्स जैगर में मैंने आपको बताया, वो जो नॉन एडिनोमेटस जो होते हैं उनमें पट्स जैगर के साथ है जो बेनाइल पॉलिप्स हैं और इनका लो रेट होता है. ठीक है, कैंसर में कन्वर्जन का. एंड नाउ कमिंग टू द अदर मेन टॉपिक जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, कोलोरेक्टल कैंसर. बड़ा आसान है याद करना, इतना ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है और एग्जामिनेशन स्टैंड पॉइंट से इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट. कोलोरेक्टल कार्सिनोमा इज बेसिकली प्रीडोमिनेंटली डिजीज ऑफ द वेस्ट. यूरोप में सबसे ज़्यादा कॉमन है, जहाँ के हाई डाइटरी फाइबर इनटेक, लो डाइटरी फाइबर इनटेक इज पॉसिबिलिटी टू बी वन ऑफ द मेन फैक्टर्स. और थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर इन द यूके, 100 न्यू केसेस पर डे. आप इसे अंदाजा लगाओ, 35,000 केसेस पर ईयर. And ज़्यादातर 2/3 of these cancers are in the colon and 1/3 of these are found in the rectum low down. Male और female predisposition equal है and it accounts for about 16,000 deaths per year. So आप देखोगे it's so common in the Western world.
व्हाट डज इट प्रेजेंट विद, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि कहाँ कहाँ कैंसर की ज़्यादा है. 25% इन द सीकम एंड द असेंडिंग कोलन में कोलोरेक्टल कैंसर होता है. 45% लार्जेस्ट इसका होता है डिसेंडिंग कोलन में. एंड देन अनदर 30% इन द रेक्टम और ट्रांसवर्स में काफ़ी कम होता है इसके चांसेस. तो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा किस में, डिसेंडिंग कोलन में है और सिग्मॉइड कोलन में है, उसके बाद रेक्टम में है और उसके बाद असेंडिंग कोलन और सीकम में है. अगेन प्री डिस्पोजिशन क्या होती है, प्री एग्जिस्टिंग पोलिप्स एडिनोमेटस पोलिप्स फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस कोलाई हो या मल्टी हेड फिनोमेना होता है. कहते हैं कि जो एडिनोमा होता है उसके अंदर सटल चेंजेस आती जाते हैं जिससे वो जो मेटाप्लेजिया, एनाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया एंड कार्सिनोमा वाले चक्कर होते हैं. जेनेटिक फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं और डाइटरी फैक्टर्स जिसमें ज़्यादा चारकोल और ज़्यादा बारबेक्यू चीज़ें एंड लो फाइबर डाइट सीम टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. स्प्रेड जिसका होता है डायरेक्ट होता है थ्रू द वॉल, अगर ये पंक्चर कर जाए, सिरोजा को पंक्चर कर जाए, थ्रू लिम्फेटिक्स, ब्लड वेसल्स होता है, एंड ट्रांसइलोमिक विद इन द एब्डोमिनल कैविटी टू द विद इन द पेरिटोनियल कैविटी टू द एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स. ठीक है. एफएपी जीन्स और जो एमएमआर जीन है, दीज आर postulated to play a role in the mutations इनके अंदर जो होती हैं which result in playing a role in the formation of colorectal cancer. ठीक है. उसके बाद डाइटरी फैक्टर्स की हम जो बात कर रहे हैं उसमें लाइफस्टाइल, सेडेंटरी, हाई फाइबर डाइट, लो फाइबर डाइट आपने और ज़्यादा रिफाइंड डाइट, बाइल एसिड्स की अगर एब्जॉर्प्शन इन द टर्मिनल आइलियम इम्पेयर्ड हो तो इट आल्सो कॉजेज, जिस तरह बैरेट्स ईसोफेगस में होता है एसिडिक रिफ्लक्स जो होता है बार बार वो चेंजेस ले आता है इन द म्यूकोजा, तो इसी तरह बाइल एसिड्स कैन बी इरिटेंट टू द लार्ज गट. अगर उनकी एब्जॉर्प्शन इम्पेयर हुई तो दे कैन आल्सो प्ले अ रोल. And then ulcerative colitis, Crohn's disease, previous gastric surgeries because of polyposis and other also play a role. डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, पहले पेशेंट किसके साथ आपके पास आता है, एनीमिया के साथ आता है, एनोरेक्सिया के साथ आता है. अगर असेंडिंग कोलन में मास होगा तो राइट आइलिएक फॉसा में मास के साथ आएगा, वरना अगर डिसेंडिंग कोलन में होगा तो लेफ्ट आइलिएक फॉसा मास के साथ आएगा. चेंजेस इन बावल हैबिट्स होगी या कॉन्स्टिपेशन या टेनेस्मस होगा, क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन होगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगी, थिन स्ट्रीम ऑफ स्टूल हुआ करेगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ब्लोटिंग होगी, फुलनेस होगी, टेनेस्मस होगा, सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन होगा, रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है, क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन हो सकती है, टेनेस्मस इनकम्प्लीट, सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन के स्टूल पास करने के बाद भी पेशेंट फील करेगा देयर इज समथिंग लेफ्ट बिहाइंड. और per rectal examination पे there will be a palpable mass if it is in the low in the rectum or low in the sigmoid, so it can be feel in PR per rectal examination. तो क्या होता है समरी में, चेंजेस इन बाउल हैबिट्स होंगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, हैबिट्स चेंज होगी, कंसिस्टेंसी इसकी चेंज होगी, रेक्टल ब्लीडिंग होगी, डिपेंडिंग अगर लो डाउन प्रॉब्लम हो तो ब्राइट रेड होगी और अगर ऊपर हो तो थोड़ा डार्क रेड या मिक्स्ड होगी. It can be separate or mixed with the stool. और पेन जो होगी, क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन, पेनफुल डेफिकेशन, टेनेस्मस भी हो सकता है. और डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, टेनेस्मस, म्यूकस, एक्सेस म्यूकस सिक्रीशन पर रेक्टम होती है, वेट लॉस होता है, एनोरेक्सिया, लेथार्जी, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री लाइक वी मेंशन्ड, ऑल दीस थिंग्स ये हो सकता है. क्लिनिकली एग्जामिनेशन पे आपको क्या मिलेगा, जनरल एग्जामिनेशन में आपको पहले मिलेगा पेशेंट पेल होगा, देयर विल बी blood loss की वजह से the patient will be pale. There will be ulcerative colitis, Crohn's disease वगैरह टाइप की चीज हो तो there will be a previous scar. From the previous surgery there can be a scar. और क्या आपको मिल सकता है एग्जामिनेशन में, राइट आइलिएक फॉसा मास अगर सीकम का हो, अगर असेंडिंग कोलन का हो, तो अगर डिसेंडिंग वाला चक्कर हो तो आपको लेफ्ट आइलिएक फॉसा मास भी मिल सकता है एब्डोमिनल पैल्पेशन पे. देन हेपर में, हेपर मींस लिवर, लिवर में आपको क्या हो सकता है, हेपेटोमेगैली मिल सकती है मेटास्टेसिस की वजह से. ठीक है. ईआर पे पर रेक्टल एग्जामिनेशन में यू कैन फील अ मास, एबनॉर्मल ग्रोथ इन द ल्यूमेन ऑफ द रेक्टम और द लोअर एनल कैनाल. स्प्रेड जो होता है 40 to 60 ईयर्स में जो होता है, ज़्यादातर रेक्टल ब्लीडिंग, चेंज इन बाउल हैबिट्स फॉर मोर देन 6 वीक्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं. मोर देन 60 ईयर्स में भी एनी मतलब ब्लीडिंग विच इज
या चेंज इन बाउल हैबिट फॉर मोर देन 6 वीक्स, weight loss for more than 6 weeks, change in consistency of stools for more than 6 weeks, palpable abdominal mass, palpable rectal mass, or anemia of patient को raw iron loss anemia, blood loss anemia, or of unknown origin. So these all should point to the suspicion of a sinister disease like colonic cancer. ठीक है, स्क्रीनिंग हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा नहीं की जाती, लेकिन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड वेयर इट इज़ प्रीडोमिनेंट, उधर स्क्रीनिंग इसकी काफ़ी की जाती है। और उसमें स्क्रीनिंग में वो क्या करते हैं, एक मिनट यार, व्हाट स्क्रीनिंग में करते हैं कि दे लुक फॉर फीकल ऑकल्ट ब्लड 60 to 60 any patient above the 60 years of age in the western world, उनका फीकल ऑकल्ट ब्लड चेक किया जाता है, और अगर वो पॉजिटिव है तो कोलोनोस्कोपी करके देखा जाता है, और अगर कोई लीजन मिले तो उसकी बायोप्सी ले ली जाती है। And this screening is thought to reduce the mortality and complications and advanced disease by 16%. Okay? Investigations क्या आप करते हो डेफिनेटिव डायग्नोसिस रीच करने के लिए? पहले तो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पे आपको मिल गया, लाइक वी डिस्कस्ड अर्लियर। ओके, देन डेफिनेटिव डायग्नोसिस में होते हैं आपकी इमेजिंग होती है। इमेजिंग में आप बेरियम स्टडीज कराते हैं, सीटी कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, फिर कंट्रास्ट कराते हैं, एंड यू स्टेज द डिजीज। ठीक है, सीटी में आपको क्या मिलेगा ये आप देख सकते हो कि पहले आप सीटी एब्डोमेन कराओगे, कोलोनोस्कोपी करोगे, अंदर से उसका ल्यूमेन देख के जब डायग्नोज हो गया तो सीटी और एमआरआई का ज़्यादा जो है वो उसकी ग्रेडिंग और स्टेजिंग में ज़्यादा रोल है, एंड फर्दर उसकी प्रोग्नोसिस में, उसकी ट्रीटमेंट के बाद क्या फ़र्क पड़ रहा है। इन द डायग्राम ऑन द टॉप इन द राइट साइड यू कैन सी सीटी स्कैन के ऊपर ये लिवर आपको नजर आ रहा है, जिसके अंदर ब्लैक 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 गोले गोले लगे हुए। दीज आर मेटास्टेटिक लिवर डिजीज। मेट्स ट्रांसिलोमिक स्प्रेड से या ब्लड बोन स्प्रेड से लिवर के अंदर मेटास्टेसिस हो गया है। इन द डायग्राम बिलो आपको सीटी स्कैन का ये इमेज है कंट्रास्ट के साथ है, और इसमें आपको लंग फील्ड नजर आ रही है, लंग शैडोज नजर आ रही है, जिसके अंदर मल्टीपल सीडिंग हुई भी है। ये लंग मेटास्टेसिस आपको शो कर रहे हैं। तो सीटी चेस्ट एंड पेल्विस में आपको 20% एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन मेटास्टेसिस मिल जाता है, तो इट इज यूजुअली एडवांस्ड डिजीज व्हेन इट प्रेजेंट्स। ठीक है, एमआरआई में भी आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं। ड्यूक स्टेजिंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड टू स्टेज द डिजीज, एंड इट इज इसका सर्वाइवल और ट्रीटमेंट पे भी इसका इफेक्ट होता है। तो TNM क्लासिफिकेशन होती है ना हर चीज की, तो ट्यूमर जो होता है इसके T1 से T4 तक होते हैं। T1 ट्यूमर इज ओनली इन्वॉल्व द, अगर आप थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ द कोलन की बात कर रहे हैं, वॉल ऑफ द कोलन की, तो T1 इज ओनली कन्फाइंड टू द म्यूकोजा ऑफ द कोलोनिक वॉल। T2 है सब म्यूकोजा तक पहुंचाओ, म्यूकोजा इन्वॉल्व एंड सब म्यूकोजा इन्वॉल्व हो जाए तो T2 हो जाता है। T3 होता है अगर वो सिरोजा तक पहुंच जाए, लेकिन सिरोजा को उसने ब्रीच नहीं किया होता आउटर मोस्ट कवरिंग को, मस्कुलरिस प्रोप्रिया से गुजर के सिरोजा तक पहुंचा होता है T3। और अगर सिरोजल ब्रीच हो जाए, पेरिकोलोनिक फैट तक पहुंच जाए, सिरोजा से बाहर निकल आए ट्यूमर, एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स पे पहुंच जाए, एडजेसेंट लूप तक पहुंच जाए, लिम्फ नोड तक पहुंच जाए, तो ये T4 ट्यूमर साइज 4 हो जाता है। और नोड्स का क्या होता है, N0 है नो नोड इन्वॉल्व, N1 है लेस देन 3 लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व, और N2 है मोर देन 3 लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व। ठीक है, मेटास्टेसिस M0 और M1 होता है। M0 कोई मेटास्टेसिस नहीं है, M1 डिस्टेंट मेटास्टेसिस है, जो कि एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स में हो सकता है, लिवर में हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, कहीं भी जा सकता है थ्रू ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, तो T1 to T4, T1 is confined to the mucosa, T2 is mucosa and submucosa muscularis तक, propria तक even, and T3 is up to the serosa and T4 is beyond the serosa. And then coming to the staging, इसका ड्यूक स्टेजिंग जो है इसका 5 ईयर सर्वाइवल रेट के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है। इफ इट्स अ ड्यूक ए डिजीज और आफ्टर ट्रीटमेंट का 85% सर्वाइवल रेट है, ड्यूक्स बी 60 to 70, 65 to 70, ड्यूक सी 35 to 40, एंड ड्यूक स्टेज 5 है जब वो सिरोजा से भी निकल गया, डिस्टेंट मेटास्टेसिस भी हो गया, सब कुछ, तो इसका वेरी डिस्मल 5 to 10% है 5 ईयर सर्वाइवल रेट। ट्रीटमेंट क्या होती है, हाउ डू यू ट्रीट कोलोरेक्टल कैंसर? डेफिनेटिव डायग्नोसिस पहले आपने रीच कर ली, तो उसके बाद स्टेजिंग होगी, जिससे हमने बात की है पीछे। तो स्टेजिंग के बाद आप क्या करते हो, इसकी
मेटास्टेटिक डिजीज है, कोमॉर्बिडिटीज है या नहीं है, एनीमिया है या नहीं है, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन कंप्लीट है, पार्शियल है, उस पर डिपेंडिंग आपकी मैनेजमेंट होती है. मैनेजमेंट कैन बी पैलिएटिव टू रिलीव द सिम्टम्स, जिसमें आप आयरन देते हो, एनीमिया को बिल्डअप करते हो, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को पूरा करते हो. कोलन में अगर कहीं ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है तो पैसेज ऑफ फीकल मैटर के लिए आप स्टंटिंग करके स्ट्रक्चर को या नैरों को को रिलीव करते हो. तो दिस इज ऑल पैलिएटिव. ठीक है. और इसकी जो रिसेक्शन प्रोसीजर्स किए जाते हैं वो मैंने आपको बताया था, डिपेंडिंग अपॉन द ब्लड सप्लाई किए जाते हैं. जो आपको पहले डायग्नोसिस आपको मैंने तस्वीर दिखाई थी ब्लड सप्लाई की, उसमें भी आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या होता है. ठीक है. तो उसके डिपेंडिंग अपॉन द ब्लड सप्लाई और लोकेशन ऑफ द ट्यूमर, राइट हेमिकोलेक्टमी, लेफ्ट हेमिकोलेक्टमी, सेगमॉइड कोलेक्टमी, एंटीरियर रिसेक्शन, abdominoperennial resection और parts of liver and lung resection to get rid of the mets. राइट हेमिकोलेक्टमी क्या होता है? हमने बात की थी कि proximal part of the large gut, which is the ileocecal junction, appendix, colon, ascending colon, the hepatic flexure of the colon, और up to the proximal 1/3 of the transverse colon. ये सारी सप्लाई किससे हो रहे थे? सुपीरियर मेसेंटेरिक एंड इट्स ब्रांचेस से हो रहे थे. तो सुपीरियर मेसेंटेरिक को हटा दें तो दिस इज को टाई कर दें और ये सारा कुछ हटा दें तो दिस इज राइट हेमिकोलेक्टमी. राइट साइडेड आपने हेमिकोलेक्टमी कर दिया, दिस इज राइट हेमिकोलेक्टमी. ठीक है. लेफ्ट ट्रांसवर्स कोलेक्टमी क्या होती है? ट्रांसवर्स कोलन में ट्यूमर है तो आप पार्ट ऑफ इसमें आप हेपेटिक फ्लेक्चर से लेके स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलन तक ये ट्रांसवर्स कोलन को उड़ा देते हैं. इसमें आप सुपीरियर इंफीरियर मेसेंटेरिक की जो ब्रांचेज हैं, मिडिल कोलिक और जो आर्केड्स बन रही हैं, उनको आप टाई करते हैं. पूरी सुपीरियर इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी को नहीं टाई करते क्योंकि बाकी सारी गट तो वायबल है और उसको तो आपने जोड़े रखना है. और जो आप एनास्टोमोसिस करते हैं, जो स्प्लेनिक से फ्लेक्चर, हेपेटिक फ्लेक्चर से लेकर स्प्लेनिक फ्लेक्चर तक काटने के बाद, इसके बाद यूजुअली आपको ना राइट साइड से या लेफ्ट साइड से लार्ज इंटेस्टाइन कोलन को मोबिलाइज करना पड़ता है क्योंकि इन फ्लेक्चर्स के ऊपर ये फिक्स्ड होते हैं रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स के साथ, पेरिटोनियम उधर जाके फिक्स हुआ होता है. तो यू हैव टू मोबिलाइज इट ताकि आप टेंशन फ्री रिपेयर कर सकें. लेफ्ट हेमिकोलेक्टमी क्या होती है? इंफीरियर मेसेंटेरिक के ब्रांचेस पे आप आ जाओ. तो अगर लेफ्ट स्प्लेनिक फ्रैक्चर का ट्यूमर है या डिसेंडिंग कोलन का ट्यूमर है या सिग्मॉइड का ट्यूमर है तो आप इंफीरियर मेसेंटेरिक और इसकी ब्रांचेस को आप लाइगेट कर देते हो, जिसकी वजह से आप क्या निकाल रहे हो? डिस्टल 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन, स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ द कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मॉइड, रेक्टोसिग्मॉइड अप टू द रेक्टम डिपेंडिंग अपॉन कहाँ वो है, इस कार्य को आप निकाल देते हो. दिस इज योर लेफ्ट हेमिकोलेक्टमी. सिग्मॉइड कोलेक्टमी ये है कि आप ट्रांसवर्स का वो पार्ट सारा छोड़ देते हो, उसके जो आर्केड और जो मार्जिनल ब्रांचेस हैं सुपीरियर इंफीरियर मेसेंटेरिक के, उनके एनास्टोमोसिस को आप रहने देते हो और हेपेटिक स्प्लेनिक फ्लेक्चर के बाद सॉरी आप इसको बाकी को निकाल देते हो. तो दिस इज सिग्मॉइडेक्टमी. ठीक है. एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन क्या होता है कि आप पूरा अप टू द एनल कैनाल, लो डाउन आपका ट्यूमर है तो आप रेक्टोसिग्मॉइड, सिग्मॉइड और रेक्टम और एनल कैनाल सारी निकाल देते हो. इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की आप लाइगेशन कर देते हो और इसकी सारी ब्रांचेस हटा देते हो और परमानेंट कोलोस्टमी बना देते हो. ये यहाँ से पेशेंट परमानेंटली थ्रू स्किन आप कोलन को बाहर निकाल देते हैं और वहाँ से पेशेंट स्टूल और फीकल मैटर पास करते हैं. तो इसको वो कहते हैं. अब आगे आ जाती हैं कोलोस्टमीज. अभी टाइम नहीं है, वी विल बी डिस्कसिंग इट लेटर ऑन एंड आई गेस we can have another lecture about the large intestine when the time comes. Good luck to you. Stay safe or be healthy. Thank you very much. और पढ़ो थोड़ा थोड़ा सर्जरी साथ साथ पढ़ते रहो सारे. Good luck.